A very important exam, that is CLAT 2021 exam, is over, and in this video we are going to look at the paper, that how was it, the level of the paper. We are going to discuss the few questions that relate to legal reasoning, जो भी passages legal reasoning से आए हैं उनके solutions हम discuss करेंगे, and we will also discuss some further things that people who are preparing for 2022 CLAT need to keep in mind. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So speaking of the paper as a whole, if we see कि 2021 का जो paper है in comparison to the 2020 paper was easier. Since the paper was easier, the cutoff will be higher. Now, looking at the section-wise analysis of the paper, English में questions बहुत easy थे, direct थे. Basically, the questions related to what was the tone of the passage, purpose of the author, inferences, then also with respect to vocabulary, some synonym antonyms were asked. So mostly these were the questions. पांच passages थे जिसमें से कुछ passages COVID पे थे. Then there was a passage that was on education. So on the whole, English was easy, pretty easy. देन मूविंग ऑन टू क्वांट में क्या था कि इस बार पाई चार्ट्स डायग्राम्स वगैरह कुछ नहीं थे. देयर वर पैसेजेस गिवन एंड यू हैड टू कम टू द आंसर्स थ्रू दोज पैसेजेस ओनली. अब वो जो पैसेज दिया था उसको आप किसी तरह से भी अपने लिए एक टैबुलर फॉर्म में उस डेटा को रिप्रेजेंट करके यू कुड हैव कम टू द आंसर्स. नाउ these questions, these calculations were not lengthy at all, they were fine, and the quant section was pretty easy, and the calculations were not lengthy also, and it was doable. Coming on to logical reasoning, the questions were based on the critical reasoning pattern. So basically questions family relation, blood relations, sequence series, इन सब से नहीं थे. As we had spoken earlier also in the videos कि questions जो हैं वो critical reasoning से ज़्यादा आएंगे because passage based questions होंगे. So these passages were there, and तीन passages COVID से ही related थे. So लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो क्वेश्चंस जो मोस्टली रिलेटेड थे उन पैसेजेस पे वो थे on the central idea of the passage, then the conclusions, inferences, and statement को आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन और वीकनिंग करने वाले पॉइंट्स. सो बेसिकली ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे. दे वर इजी. कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ट्रिकी थे, बट एट द सेम टाइम in comparison to last year, the paper was easier. Current affairs was very very easy. कुछ भी analytical नहीं था. Everything was passage based. Direct questions थे. Passage based से मेरा मतलब है direct questions थे. There were these passages relating to uh, Modi's visit to Bangladesh, SARC, UN. So normal passages were there, and उनके बारे में questions directly given थे. देन कमिंग ऑन टू लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग में कुछ स्टूडेंट्स शायद ये फील कर रहे होंगे कि जो पैसेजेस थे वो लीगल करंट से नहीं आए इस बार, एज कम्पेयर टू 2020 जहाँ पर हमें करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर बेस्ड पैसेजेस देखने को मिले थे. इस बार जो पैसेजेस थे वो बहुत कंसेप्चुअल थे. कंसेप्चुअल बीइंग द topics that were touched upon were from different laws. आपका आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा passages थे, फैमिली लॉ था, टॉर्ट लॉ था. सो दीज passages were there. बट एट द सेम टाइम दो बातें हैं लीगल रीजनिंग में स्पेशली जो आई वांट टू डिस्कस विद यू. कि एक तो कि आपका ये माइंडसेट हो सकता है कि अगर हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते तो ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते. ऐसा नहीं है. क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स पैसेजेस में ही अवेलेबल थे. बट यस, अगर आपको थोड़ी सी पहले से क्लैरिटी होती तो ये होता कि आपको थोड़ा पैसेज समझने में, क्वेश्चंस को आंसर करने में इट वुड हैव बीन ईजियर. बट एट द सेम टाइम अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पैसेज को अच्छे से पढ़ा होगा, दे वुड हैव बीन एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो अब स्टार्ट करते हैं विद डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस टू द लीगल रीजनिंग पैसेजेस. सबसे पहला जो पैसेज है वो सेक्शन 4 से डील करता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ दिस सेक्शन 4 स्पीक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो बेसिकली इस पूरे पैसेज में दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी ऑफ प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की. देन फर्दर इसमें बातें बोली गई हैं कि अगर पोस्ट से हो रहा है तो कैसे होगा, व्हाट विल बी द प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कहाँ पर होगा,
देन प्लेस jurisdiction कहाँ पर माना जाएगा, एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन केसेस ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशंस होती हैं जैसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, उस केसेस में क्या होगा। तो देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 66 कहता है कि यहाँ पर क्या था, एस एक बंदा था, उसने ऑफर किया दैट ही वांट्स टू परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, एंड द कंपनी ऑल्सो नाउ ही मेड हिज ऑफर ऑन 1 मार्च 2021, एंड कंपनी ने जो रिप्लाई किया वो किया 10 मार्च 2021 को। हाउएवर दिस नेवर रीच्ड एस को ये एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंपनी, जो उसने ऑफर किया था कंपनी से, एक्सेप्टेंस बदले में नहीं मिली। तो अब इस केस में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, हमें ये बताना है। Communication of acceptance is not complete as against X, and hence there is no valid contract between S and the company. Communication is complete. Communication is complete as against the company, however not against X. तो बेसिकली हम कम्युनिकेशन के कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन की बात इस पर्टिकुलर पॉइंट में करी गई है, जो बोलता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट द प्रपोजर। यहाँ पे प्रपोजर कौन है, एस, एक्सेप्टर कौन है, कंपनी। तो एस के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है, व्हेन इट इज बीइंग पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब कंपनी अपना एक्सेप्टेंस एस को भेज रही है, देन इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्स, बट कंपनी के अगेंस्ट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट तभी कंप्लीट होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। यहाँ पर एस को लेटर मिला ही नहीं कभी भी एक्सेप्टेंस का, तो वो उसकी नॉलेज में नहीं आया, तो देयरफॉर द एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द कंपनी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज ए हु इज इन मुंबई मेक्स एन ऑफर टू बी हु इज इन दिल्ली टू सप्लाई गुड्स। तो अब ये जो ऑफर है ये फोन कॉल पे हुआ है, एंड ये बोला गया ऑफर एब्सोल्यूट है। अब जो टर्म्स अग्री हुई है कि ए एंड बी गुड्स आर टू बी सप्लाइड एट पुणे, एंड पेमेंट हैज टू बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली। अब इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर कंक्लूड हुआ है, अब हम सीधा पैसेज पे जाएंगे कि हमने जहां पर मेंशन करा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एट द प्लेस, विच प्लेस, इट इज कंप्लीटेड वेयर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। प्रपोजल जहां पर एक्सेप्ट हुआ है, प्रपोजल मुंबई से आया है और दिल्ली में एक्सेप्ट हुआ है, and the communication of acceptance is dispatched is the place from where the communication has dispatched। communication जो dispatch हुई है वो हुई है दिल्ली से। so when the communication is dispatched, that is the address at which the proposal was sent। so address किस पे proposal भेजा गया था, मुंबई से proposal दिल्ली गया था। तो therefore the correct answer to this question will be Delhi, because contract दिल्ली में conclude हुआ है। it is the place where the proposal was sent by A to B। then moving further, X जो गांधीनगर में है वो ऑफर करता है दूसरे Y को टू सेल हिज लग्जरी कार। अब ये जो है जम्मू में है, ये गांधीनगर में है। अब ये ईमेल सेंड हुआ है 15 जनवरी 2021 को 2:03 PM पे। वाई एक्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय वाई बाय एन ईमेल विच इज सेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। द ईमेल कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस वाज रेड बाय एक्स ऑन जनवरी 15th। तो इस टाइम पे वो जो एक्सेप्टेंस है वो रीड करा गया है। अब ये बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंक्लूड कब हुआ है। नाउ इफ वी सी द पैसेज, वी विल आंसर थ्रू द पैसेज ओनली। हम जो प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पे नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ एसेंशियली वी वर टोल्ड टू स्टडी कि पैसेज से ही क्वेश्चंस आएंगे, प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। हाउएवर अगेन आई वुड से कि ये जो पैसेजेस आए हैं ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे आए हैं, तो अगर पहले से क्लैरिटी होती तो पैसेजेस पढ़ने में और क्वेश्चंस को समझने में स्टूडेंट्स को आसानी रहती। Now, here the passage says that the acceptor does not become bound merely by posting his acceptance. He becomes bound only when his acceptance comes to the knowledge of the proposer. तो acceptance जो है वो proposer की knowledge में आनी चाहिए। अब यहाँ पर
क्योंकि हम ईमेल की बात कर रहे हैं तो ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मेथड है। यहाँ पर बात करी गई है पोस्टिंग की। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन ईमेल से है तो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट अराइज अनलेस द ऑफरर रिसीव्स द नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर ऑफरर जो है यानी एक्स, उसको एक्सेप्टेंस कब मिला है, नोटिफिकेशन कब मिला है ऑफ द एक्सेप्टेंस, उसको वो मिला है 15 जनवरी 2021 7:05 पीएम को। देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए जो है वो आगरा में है एंड ही इज सेलिंग हिज लग्जरी कार टू वाई हुज इन जम्मू। यहाँ पर भी ईमेल से कम्युनिकेशन भेजा गया है बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वो मेल रिसीव नहीं हुआ। अब मेल रिसीव नहीं हुआ तो एक्स ने फिर से मोबाइल फोन के थ्रू सेम डेट को दोबारा से ऑफर भेजा एंड ऑफर जो है वो वाई ने एक्सेप्ट कर लिया ऑन द सेम डे एट 4:10 पीएम। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड हुआ है ये पूछा है। पैसेज से हमको पता है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड वहां पर होगा जहां पर प्रपोजल को भेजा गया है। अब यहाँ पे प्रपोजल को भेजा गया है फ्रॉम आगरा टू जम्मू, देयरफॉर जो एक्सेप्टेंस है वो जम्मू में होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड जम्मू में होगा। Then next is when the words of acceptance are spoken into telephone, they are put into the course of transmission so as to be out of the power. In the light of this proposition, which of the following statement is true? So basically instantaneous mode के बारे में यहाँ पर हर एग्जाम्पल में बात हो रही है। अब फोन जो है, फोन से टेलीफोन से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटली हो रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ की डायरेक्ट कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन, सो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है। जैसे ही हम द वर्ड इंस्टेंट देखते हैं तो हमारे ऑप्शन 3 और 4 रूल आउट हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पर नॉन इंस्टेंटेनियस की बात करी गई है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों में से बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। इट इज एन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन तो कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली अराइज हो जाता है, यस। एंड कम्युनिकेशन जो है वो इंस्टेंटेनियस है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज इमीडिएटली कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर एज वेल एज द एक्सेप्टर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1 एंड 2 ऑप्शन बी हमारा जो है वो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इंस्टेंटेनियस मोड में किया गया है तो साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है इट कम्स इनटू बीइंग। Now the next passage is based on the doctrine of res judicata. Res judicata is basically एक बार होता है to prevent parties from instituting the same suit against the same parties before the same court on the same issue basically. Now अब इस पैसेज में भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्योंकि एक तो कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इससे जो लिटिगेशन है वो कम हो जाएगा, तो अलाउड नहीं होता कि बार बार आप सेम बात के लिए सेम कोर्ट में अप्रोच करें जब कोर्ट का डिसीजन ऑलरेडी आ गया है। देन सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी में इस मैटर से डील किया गया है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, साथ साथ रिट जूरिसडिक्शन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। हैड यू फॉलोड द चैनल, मैंने रिट्स को काफ़ी एक्सप्लेन किया था एंड ऑल्सो आई कीप पोस्टिंग माई रील्स ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पर मैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उनके बारे में चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। Now, which of the following is res judicata applicable to? The question is this. अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो ये हैं। अब अगर हम इसकी बात करें पैसेज की तो इसका आंसर हमें इस इन पर्टिकुलर लाइंस में मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है रेस जुडिकेटा जो है वो सेक्शन 11 में अप्लाई करता है एंड देयरफॉर इट गवर्न्स द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड इन सिविल मैटर्स। तो रेस जुडिकेटा जो है हमारा इट इज एप्लीकेबल इन सिविल सूट्स। देन हमें देखना है रिट पिटिशन में ये एप्लीकेबल है या नहीं। अब यहाँ पर बोलता है सेक्शन 11 इज inapplicable to writ jurisdictions. However, if you study till here, then you might get it wrong. अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को ऑब्जर्व करा है कि ये रूल ऑल्दो टेक्निकल है इन नेचर की सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी करता है तो सिविल सूट्स में फॉलो होगा, बट ये पब्लिक पॉलिसी पे भी बेस्ड है साथ ही साथ, तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड कि अगर कोई रिट पिटिशन फाइल हुई है, पार्टी ने अगर 226 आर्टिकल में रिट पिटिशन फाइल करी गई है और उस मैटर को डिसाइड किया जाता है
तो द पार्टी शुड नॉट बी बार्ड जस्ट बिकॉज कि वो रिट पिटिशन है, उसके फंडामेंटल राइट को रियलाइज करने से ही कैन नॉट बी बार्ड टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. सो देयरफॉर रिट्स में भी ये एप्लीकेबल है. सो आंसर द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, रिट और सिविल सूट्स दोनों को ये एप्लीकेबल है. The next question is doctrine of res judicata is applicable to writs if the decision is on merits, the order is a speaking order. तो जब हम ऐसी टर्म्स देखते हैं वी शुड इमिडिएटली ट्राई टू लोकेट कि ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ पर पैसेज में बोली गई हैं, सो दैट यू नो वी कैन सेव टाइम एंड हमें बार बार पैसेज ना पढ़ना पड़े. मैंने टाइम एंड अगेन बोला था पैसेजेस के टाइम पे कि आपको एक बारी में ही कंटिन्यूसली पैसेज पढ़ना है एंड साथ में शॉर्ट नोट्स आप साइड में बना लीजिए. इस बार ऑफलाइन पेपर था तो इट वुड हैव बीन ईजियर कि अगर आपने साइड में शॉर्टली ऐसे लिख लिया है कि ये कौन सी पैराग्राफ किस बात से डील कर रहा है. तो अब अगर हम यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्डर वर्ड अपीयर हो रहा है. इसमें ये बोला गया है कि dismissal of writ petition would not constitute a bar. However, if the petition is dismissed without passing a speaking order, then it cannot be treated as a bar to res judicata. मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है while whereas the question is asking पॉजिटिव फॉर्म में कि एप्लीकेबल रिट्स पे कब होता है. यहाँ पर बोल रहे हैं रिट पे एप्लीकेबल बार रेस जूडिकेटर का तब नहीं लगेगा अगर स्पीकिंग ऑर्डर ही नहीं आया, मतलब केस मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुआ है और एक ऑर्डर उस केस में नहीं आया है तो रेस जूडिकेटर नहीं एप्लीकेबल होगा. अब यहाँ पर ये बोला गया है इफ द पिटिशन इज फाइल्ड अंडर हाई कोर्ट अंडर दिस 226 इज डिसमिस्ड बट वो मेरिट पे डिसमिस नहीं हुई है देन ऑल्सो इट विल नॉट बी अ बार. तो स्पीकिंग ऑर्डर भी होना चाहिए और मेरिट्स पे ही डिसमिस होना चाहिए, तभी आप डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई कर सकते हो. देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट इज on which of the following is the doctrine of res judicata based. अब ये किस पे बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि लिटिगेशन जो है वो मल्टीपल ना हो. लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए, कोर्ट्स के डिसीजंस को बाइंडिंग बनाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि नो पर्सन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, इन सभी चीजों पे ये डॉक्ट्रिन बेस्ड है. ऑप्शंस देख लेते हैं. नो वन शुड बी वेस्टेड ट्वाइस, यस. इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यस. And it should be there should be an end to litigation. Therefore D, that is all of these will be the correct answer to this question. Then moving forward, which of the following is correct? अब इनमें से कौन सी बात करेक्ट है? अ रिट पिटिशन इज फाइल्ड अंडर 226 एंड द सेम इज रिजेक्टेड ऑन मेरिट्स बाय अ स्पीकिंग ऑर्डर. अनदर रिट पिटिशन अंडर 32 इज नॉट मेंटेनेबल एंड इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा. सो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि रिट पिटिशन अगर मेरिट्स पे और स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू पास करी गई है तो दूसरी पिटिशन जो है वो बार हो जाती है बाय रेस जुडिकेटा. सो ए इज करेक्ट. हमें यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है. देन नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड बाइंडिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. सो ये भी करेक्ट है. देन अब हमने देखा कि ये दोनों करेक्ट हैं. सो वी कैन सेव टाइम बाय नॉट रीडिंग दिस बिकॉज हमारा ऑप्शन ए एंड बी दिया हुआ है, हम इसको सेफली मार्क कर सकते हैं बिकॉज 1 एंड 2 हमने देख लिया है, दोनों करेक्ट हैं. तो आंसर देयरफॉर ऑप्शन डी ही होगा. Then next is Mr. X was dismissed from service after proper inquiry and he challenged this writ petition. हाई कोर्ट में जो पिटिशन डिसाइड हुई, हाई कोर्ट ने बोला कि आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी लीजिए एंड ही टुक द कोर्स टू ऑल्टरनेटिव रेमेडी. बट उसके एम्प्लॉयर ने बोला कि आप जब दूसरे कोर्ट के पास वापस जा रहे हैं, जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो ये बार्ड है बाय रेस जुडिकेटा. ये एम्प्लॉयर का कंटेंशन था. हाउएवर देखते हैं कि ये करेक्ट है स्टेटमेंट या नहीं. रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल सिंस द मैटर. ये वाला पार्ट तो हम हटा देते हैं, लाइवलीहुड और पर्सन वाला, बिकॉज ऐसी कोई हमने इस पैसेज में देखा नहीं है बात हुई भी. अब रेस जुडिकेटर जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. वाई? बिकॉज
कोर्ट ने मैटर में ये बोला है, डिसमिस कर दी है पिटिशन, कोई ऑर्डर नहीं दिया है, मेरिट्स पे केस को डिसाइड नहीं किया है, सीधा बोला है कि आप अप्रोप्रिएट फोरम के पास जाइए। तो अप्रोप्रिएट फोरम के पास अगर वो जा रहा है हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, तो इट इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, another passage is on again on contract। तो यहाँ पर बेसिकली बात करी गई है कंसेंट की, फ्री कंसेंट जो एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ऑब्वियसली सेक्शंस क्लैट लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है याद करने के लिए। अब इसमें पूरी वैलिडिटी की बात करी हुई है, बोला गया है कंसेंट फ्री कब होता है, कब मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड एक्सरसाइज किया जाता है। डेफिनेशंस में फ्रॉड के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं कि फॉल्स असर्शन, एक्टिव कंसीलमेंट, ये सारी चीज़ें विल अमाउंट टू फ्रॉड। देन टुवर्ड्स द एंड इट स्पोक की मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें से 1 2 3 इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन कब माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो फ्री कंसेंट के नहीं होते हैं, देन दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर voidable at the option of the party जिसका consent फ्री नहीं है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। जहां पे हमने देखा एसेंशियल्स की बात हो रही है, वील कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज जहां पे इनकी बात करी गई है। अब ऑप्शन कहता है कि इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज मेड और अडॉप्टेड बाय अ पार्टी एंड इज अनट्रू। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो फॉल्स है। सो बट द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू, देयरफॉर यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोला गया है वो है फॉल्स। अनट्रू मतलब इट इज फॉल्स। सो देयरफॉर ये हमारा फुलफिल हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स दिस। देन फर्दर देखते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन डू नॉट मीन द सेम। अब यहाँ पर क्या है कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया गया है। यू माइट गेट कंफ्यूज कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम चीज नहीं है बाय रीडिंग दिस। हियर द वर्ड इज असर्शन, हियर द वर्ड इज रिप्रेजेंटेशन, तो ये गलत है। बेसिकली असेंशियल जो है मिस रिप्रेजेंटेशन के, उसका आंसर ऑप्शन ए ही है क्योंकि वो नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है। एंड फर्दर ऑप्शन सी में टुवर्ड्स द एंड ये बोला गया है कि जो पार्टी मिसलेड है it cannot avoid the contract, whereas the passage says that the contract can be avoided अगर किसी पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है। therefore ऑप्शन ए विल बी द आंसर। द नेक्स्ट इज, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें एंड डिस्क्राइब अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। फ्रॉडुलेंट एक्ट हमने देखा कि क्या क्या चीजें फ्रॉडुलेंट एक्ट बनेंगी। इंटेंशन टू डिसीव, ये फ्रॉडुलेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है clearly कि any deceptive act, then deliberate deception with design of securing unfair advantage over the other, this is also correct। then fraud arises out of a deliberate active role of the representative about the fact, yes यहाँ पर जो रोल है एक्टिव है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है और डिफ्रॉड किया जा रहा है, डिसीव किया जा रहा है। therefore ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। Then next is 78. Which of the following statement is correct? Fraud is an innocent wrong whereas misrepresentation is an intentional wrong. हमने ऊपर देखा कि misrepresentation जो है वो एक innocent wrong भी हो सकता है because the person might believe that these facts are true. So therefore ये statement जो है वो wrong हो जाती है, हमें बताना है correct कौन सी है। Then principal difference is that इसमें पहले वाले में द पर्सन मेकिंग द सजेशन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, दिस इज करेक्ट। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इनमें बोथ में मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इट इज नॉट अ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच मिसलीड्स द प्रोमिसी, इट इज बेसिकली अ मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, देयरफॉर ये इनकरेक्ट है। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बोथ आर इनोसेंट रॉन्ग्स, ये भी इनकरेक्ट है। दोनों फ्रॉड एक डेलिबरेट रॉन्ग है, इनोसेंट रॉन्ग नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए जो है वो अपनी कार सेल करता है वाई को विद द नॉलेज कि कार जो है वो डिफेक्टिव है। बट यहाँ पर क्या है कि वाई ए से बोलता है कि अगर तुम डिनाई नहीं करते हो तो मैं अज्यूम करूंगा कि तुम्हारी कार परफेक्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली साइलेंस है, ए सेज नथिंग। अब पैसेज में क्या बोला गया है साइलेंस के बारे में? साइलेंस के बारे में ये बोला गया है जहां पे ड्यूटी टू स्पीक नहीं है वहां पे वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा अगर वो साइलेंट है तो।
बट जहां पर either there is a duty to speak और silence in itself is equivalent to speech, तब वो fraud माना जाएगा। अब यहाँ पर silence is equivalent to speech because A का ये जो statement है, Y का ये जो statement है कि if you don't deny I will assume it to be perfect means if you will stay silent I will assume it to be correct, therefore option D is the correct answer here. A silence is equivalent to speech, therefore it is a fraud. Then next is in which of the following statements will a contract not be voidable at the option of the party? Contract voidable कब नहीं होगा at the option of the party? Voidable वो कब हो सकता है? If a party takes consent by fraud, तब वो voidable होगा, misrepresentation में वो voidable होगा। A contract entered into fraud is neither void nor voidable, इसका इस statement से कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड ऑप्शन डी therefore will be the correct answer, जो ये बोलता है silence amount to fraud but other party जिसके पास means थे to discover the truth with ordinary diligence, then in that case वो voidable नहीं होगा। ये basically एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, एक लॉजिकल कंक्लूजन भी है कि अगर सामने वाला डिस्कवर कर सकता था ट्रूथ, तब वो ये नहीं कह सकता कि आई हैव बीन डिफ्रॉडेड। देन नेक्स्ट है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, बस ये वाला जो पैसेज है ये फिर भी थोड़ा सा करंट लीगल इशू से रिलेटेड है ऑन द ग्राउंड की जब कोविड के टाइम पे इतनी डेथ्स हुई थी तो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट की अपॉइंटमेंट की बात हुई थी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज बेसिकली अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो जो उसकी गवर्नमेंट जॉब थी वो फैमिली मेंबर्स को मिल सकती है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलेगी ये जनरल रूल ऑफ अपॉइंटमेंट से एक्सेप्शन में है एंड ये बेसिकली सोलिस प्रोवाइड करने के लिए है फैमिली को जब हार्ड टाइम्स हैं, ताकि उनको कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिल सके। एंड साथ साथ यहाँ पर टाइम के बारे में ये बोला गया है कि रीजनेबल लैप्स ऑफ टाइम के बाद नहीं मिलेगी, आपको जल्दी से जल्दी अप्रोच करना है अगर ऐसा कुछ होता है फाइनेंशियल क्राइसिस में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर सिग्निफिकेंट टाइम के बाद आप क्लेम कर रहे हो वो एम्प्लॉयमेंट, तो वो सही नहीं है। अब आंसर्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द इंटेंशन बिहाइंड द एप्लीकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट? The norm at the time of death of the government employee will be applicable and not the norm at the time of making the application. At the time of death the norm will be applicable। जब application तो कभी भी मतलब death के बहुत टाइम बाद भी हो सकती है, और यहाँ पर बोला गया है कि आपको ये रीजनेबल टाइम में ही इसको क्लेम करना है। सो we can say that it is correct in a way। then dependent of government employee cannot demand, इट इज फॉर द डिपेंडेंट ओनली, तो ये जो है ये इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर है नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट कंसिडर्ड वाइल अप्लाइंग, जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं वो ही कंसिडर करे जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। नॉर्म प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन शुड बी द बेसिस, ये भी इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज डेट ऑफ एप्लीकेशन पता नहीं कब हो, वो इंपॉर्टेंस जो है वो द टाइम ऑफ डेथ को दी जाती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following is not correct about the rule of compassionate appointment? इनमें से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? कंपैशनेट अपॉइंटमेंट फैमिली मेंबर्स को दी जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस, यही हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे ही इस एम्प्लॉयमेंट को अपॉइंटमेंट को दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है कि ये अथॉरिटी जो है इट विल एग्जामिन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली बिफोर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट। देन नेक्स्ट इज मिस्टर वाई सन ऑफ एक्स, वो कंपनी के सामने जाता है 2018 में टू सीक एम्प्लॉयमेंट। अब उसके फादर की डेथ 2000 में हो गई थी, तो 18 इयर्स के बाद जा रहा है। नाउ एज पर द पैसेज ये बहुत ही लंबा टाइम लैप्स है, तो क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब आंसर क्या होगा? he is not entitled to get compassionate employment as a long period has elapsed since the death of his father, therefore this will be the correct answer here। अब यहाँ पर not entitled में एक और ऑप्शन है जो ये कहता है कि अब उसमें रीजनिंग क्या है, एज इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी टू रिफ्यूज द सेड अपॉइंटमेंट। बट डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी वो कब आएगा, किस बेसिस पे आएगा? कि टाइम सही है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है,
तो पैसेज के हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम फॉर्मुलेट करी है कि जो लोग किसी मेडिकल इनवैलिडेशन, किसी मेडिकल रीजन की वजह से रिटायर हो रहे हैं, तो उस केस में अगर वो उनको उनके फैमिली मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगा अगर एटलीस्ट 5 इयर्स बिफोर वो रिटायर हो जाते हैं। उनका रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना था, बट उससे 5 साल पहले वो रिटायर हो जाते हैं ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, तो इन दैट केस ये दिया जाएगा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर फैक्ट्स कंसिडर करना है और डिसाइड करना है कि वैलिडिटी क्या है रूल ऑफ कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट की। अब ये कहता है कि द स्कीम इज वैलिड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ डिपेंडेंट्स। दिस इज इनकरेक्ट। Scheme is not valid as compassionate appointment to a government servant who is medically invalidated is not an exception to the general rule. ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि जो स्कीम है वो गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट की स्कीम है, एंड कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने जॉब के लिए। और अगर हम पैसेज में देखें तो ये दिया हुआ है कि गवर्नमेंट के पास ही ये राइट है ऐसी पॉलिसीज को बनाने का, बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंसर्न अथॉरिटी विल एग्जामिन एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड ओनली देन इट विल गिव द अपॉइंटमेंट टू दीज पीपल। सो अगर हम इनके ऑप्शंस को देखें तो स्कीम जो है वो आर्बिट्री नहीं है, गवर्नमेंट के पास राइट है टू फॉर्मुलेट सच रूल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज, इसमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। काफी क्वेश्चंस इसी टोन में पूछे गए हैं, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछा गया है। ये हम काफी बार वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि करेक्शन और नॉन करेक्शन में क्या हो रहा है। अब रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर कंपैशनेट ग्राउंड्स, अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अ रिक्वेस्ट फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बाय डिपेंडेंट्स मस्ट बी प्रेफर्ड विदाउट अनड्यू एनी डिले, तो ये करेक्ट है। जनरल रूल इट मे नॉट ऑलवेज, जनरल रूल ऑफ अपॉइंटमेंट हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा कंपैशनेट को, ये करेक्ट है बिकॉज कंपैशनेट इज एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल। पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही ये दिया हुआ है। द इमीडिएसी ऑफ द नीड is not the basis for the state to allow compassionate employment। ये जो आंसर है ये इनकरेक्ट है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे इमीडिएसी ही देखी जाती है, तभी टाइम को इंपॉर्टेंस दी गई है कि इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैसेज, ये पैसेज आईपीसी पे है, तो कॉन्सेंट की यहाँ पर भी बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का भी कंसेंट का क्वेश्चन आया है और आईपीसी का भी कॉन्सेंट का क्वेश्चन आया है। आईपीसी में कॉन्सेंट जो है वो सेक्शन 90 में गिवन है। यहाँ पर बात हो रही है फियर और मिसकंसेप्शन के अंदर दिए गए कंसेंट के बारे में। सो बेसिकली ये बोला गया है कि अगर फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया जा रहा है कंसेंट, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। और these grounds are analogous to coercion and mistake of fact, यानी coercion fear से coercion रिस्पॉन्ड कर रहा है, मिसकंसेप्शन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर अगर कंसेंट दिया जा रहा है। फर्दर ये एक बोला गया है कि ये जो है ये एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि सेक्शन 90 में एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ कंसेंट नहीं दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक मैन है, एक वुमेन को प्रॉमिस करता है दैट ही विल मैरी हर एंड ऑन दैट ग्राउंड शी हैज इंटरकोर्स विद हिम, तो ऑन दिस ग्राउंड ही मेक्स हर अग्री। तो ये उसको मिसकंसेप्शन में डाला गया है कि वो उससे शादी करेगा, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो हमें बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ये एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। इंजरी की बात हो रही है, इंजरी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है, अगर कंसेप्चुअली आपने पढ़ा होगा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है कि आप किसी दूसरे के ऊपर अपनी डोमिनेशन ऑफ विल एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप अपनी डोमिनेशन एक्सरसाइज कर सको। बट यहाँ पर इस पूरे पैसेज में अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात नहीं की गई है, तो हम आंसर में से भी उसको एलिमिनेट कर देंगे। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है उस फैक्टर की कि प्रायर नॉलेज अप्लाई नहीं होगी। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इज सेड टू कंसेंट टू डूइंग एन एक्ट इफ, तो यहाँ पर कंसेंट कब माना जाएगा,
कंसेंट तब माना जाएगा, हमने देखा 90 में बोला गया है कंसेंट तब माना जाएगा कि एक्ट जो है वो अग्री कर रहा है इंसान करने का विदाउट मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट और फियर ऑफ इंजरी, एंड जो पर्सन है जिसको अग्रीमेंट में एंटर कराया जा रहा है उसके पास रीजन नहीं है बिलीव करने का कि उसको किसी मिसकंसेप्शन या फियर ऑफ इंजरी में डाला जा रहा है। अब ये जो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन सी, ये ए और बी में जो दोनों बातें करी गई हैं उसको साथ में लेके चलती है। सेक्शन 90 में हमने देखा कि दोनों ही बातें गिवन है, तो अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। Then next is according to your understanding of the given passage नेगेटिव टर्मिनोलॉजी क्यों है। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी इसलिए है क्योंकि जो पूरी डेफिनेशन है वो नहीं दी हुई है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन 90 में नहीं दी हुई है, तो टू एम्फसाइज ऑन द नॉन एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट इसीलिए उसको नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज किया गया है। बेसिकली अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अगर हम उसे नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे हैं कि दिस डज नॉट मीन दिस, हम वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट डज इट मीन, रादर वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाट इट डज नॉट मीन, तो हम बेसिकली एक नॉन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे रहे हैं, इसलिए वो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में आएगा। देन नेक्स्ट इज अगेन एक्स और वाई है, सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट है। अब इसमें क्या है कि प्रॉमिस टू मैरी है, उस बेसिस पे इंटरकोर्स है, बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि एक्स की जो फैमिली है वो अपोज कर जाती है इस मैरिज को, तो इस केस में क्या कंसेंट जो है वो फियर में लिया गया है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में लिया गया है? नहीं, बिकॉज फैमिली हैज अपोज्ड, ही हैज मेड दिस प्रॉमिस एंड ही went to the family and he spoke to the family disagreed, तो consent जो है वो किसी harm में डाल के, misconception of fact में डाल के, injury में डाल के नहीं लिया गया है। so therefore the option the correct answer will be option B कि consent जो है it was given without any misconception of fact or fear of injury। According to passage, which of the following statement is not true? Misconception vitiates consent, ये correct है, हमने देखा ऊपर कि consent कब vitiate होगा, fear of injury होगी, misconception of fact होगा तब vitiate होगा। देन fear of injury is analogous to coercion, ये भी passage में दिया है जब मैंने बात करी कि coercion और mistake of fact दोनों चीजें हैं, तो ये भी पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं coercion analogous to coercion, so therefore the correct answer to this one is misconception of fact obviates necessity of consent। नेक्स्ट आते हैं, अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, ये सेक्शन 28 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड पैसेज है जो बात करता है अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की। अब इस पूरे पैसेज में ये बात करी गई है कि अगर आप किसी कोर्ट को एक्सक्लूड करते हो, यू आर एक्सक्लूडिंग अ पर्सन फ्रॉम ब्रिंगिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो वॉइड माना जाता है, वो अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है। अब ये जो रिस्ट्रेंट है ये टाइम के रिलेशन में भी हो सकता है और किसी कोर्ट के जूरिसडिक्शन के रिलेशन में भी हो सकता है, अपना राइट को एक्सरसाइज करने के रिलेशन में भी हो सकता है। साथ साथ इसमें यह भी बोला गया है कि जब मल्टीपल जूरिसडिक्शंस होते हैं तो ये कहता है कि अगर मल्टीपल कोर्ट्स हैं और कोई एक उसमें से कोर्ट चूज कर लिया जाता है जिसका जूरिसडिक्शन है, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि पार्टीज ने जूरिसडिक्शन आउस्ट कर दिया है। एंड एट द सेम टाइम अगर जूरिसडिक्शन नहीं है बट पार्टी स्टिपुलेट करती हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्ट के सामने ये मैटर आएगा, देन वो भी वैलिड ही माना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस में, यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि ए रेजिडेंट है मुंबई का, बी है दिल्ली का, एंड दे एंटर इनटू सप्लाई, सो ट्रांजैक्शन मुंबई में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, बट दे डिसाइड कि कोलकाता के जो जूरिसडिक्शन है वो वहां का होगा, बिकॉज दे वांटेड टू अवॉइड कि कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उन्होंने एक ऐसा ही न्यूट्रल प्लेस चूज करी। अब इस सिचुएशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बेसिकली हमें ये देखना है कि रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में है या म्यूचुअली अग्री किया है या नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीपल जूरिसडिक्शन है, मुंबई का भी जूरिसडिक्शन है, दिल्ली का भी है, कोलकाता का जूरिसडिक्शन एज सच नहीं है। बट लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है, पार्टीज कैन नॉट बाय अग्रीमेंट कॉन्फर जूरिसडिक्शन ऑन अ कोर्ट जिसका जूरिसडिक्शन है ही नहीं। बट जहां पर सेवरल जूरिसडिक्शंस हैव द सेवरल कोर्ट्स हैव द जूरिसडिक्शन, तब उस केस में पार्टी स्टिपुलेट कर सकती है कि एक्सक्लूसिवली एक
कोर्ट के सामने केस आए टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर्स बिफोर वन ऑफ द सेवरल कोर्ट्स। अब यहाँ पर जो सेवरल कोर्ट्स की बात करी गई है, ये वो सेवरल कोर्ट्स हैं जहाँ पर जूरिसडिक्शन होगा। कलकत्ता का जूरिसडिक्शन नहीं है, तो पैसेज के बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करें तो द आंसर विल बी दैट द अग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, बिकॉज कलकत्ता का जूरिसडिक्शन नहीं है, या तो मुंबई होता या दिल्ली होता। देन नेक्स्ट इज ए रेजिडेंट है चेन्नई का, बी है बैंगलोर का। दे एंटर इनटू अग्रीमेंट, सेम जैसे ऊपर का है, चेन्नई और बैंगलोर में ट्रांजैक्शन हो रही है, एंड द पार्टीज दे डिसाइड कि चेन्नई के जूरिसडिक्शन वाले जो कोर्ट्स हैं उनका एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन होगा टू डिसाइड द डिस्प्यूट। तो ए के एरिया का जो जूरिसडिक्शन है वो पार्टीज चूज कर रही हैं। अब ये जो जुरिस्डिक्शन चूज किया गया है, ये क्लॉज वैलिड है। ये वैलिड क्यों है? बिकॉज एक्सक्लूजन में किया जा रहा है, जो लास्ट में दिया हुआ है कि अगर मल्टीपल जूरिस्डिक्शन है, किसी एक को जूरिस्डिक्शन दिया जा सकता है, ये वैलिड माना जाएगा। एंड ओनली व्हाट इज नॉट वैलिड, कि अगर देर इज लैक ऑफ जूरिस्डिक्शन, जैसे कि इस केस में था, कैलकटा के केस में, यहाँ पर चेन्नई को दिया गया है, उसके पास जूरिस्डिक्शन है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड माना जाएगा, ये क्लॉज वैलिड माना जाएगा, बिकॉज चेन्नई के कोर्ट्स का जूरिसडिक्शन है टू डिसाइड द डिस्प्यूट। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। एट द सेम टाइम इसका ऑप्शन करेक्ट सी भी हो सकता है, बिकॉज इसमें बोला गया है क्लॉज इज वैलिड एज ए एंड बी हैव म्यूचुअली अग्रीड। अब यहाँ पर क्या है, इसमें बोला गया है कि जहाँ पे मल्टीपल जूरिसडिक्शन होगा, दे कैन स्टिपुलेट मतलब वो प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों साथ में मिलके प्रोवाइड कर सकते हैं किसी एक का जूरिसडिक्शन। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। सो सी और डी के बीच में देखते हैं कि कंसोर्शियम का क्या आंसर रहता है। देन नेक्स्ट इज ए रेजिडेंट है आगरा का, बी है भुवनेश्वर का, सप्लाई की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन जो है वो दोनों जगह हो रही है। क्लॉज क्या दिया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट आती है तो कोई भी कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा या कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं लेगा। ये आउटराइटली सेक्शन 28 में बोला गया है, आप जुरिस्डिक्शन हाउस नहीं कर सकते हो, पार्टी का राइट टू अप्रोच द कोर्ट नहीं ले सकते हो, तो ये जो क्लॉज है ये वैलिड नहीं होगा। तो ये जो वैलिड वाले ऑप्शंस हैं ये रूल आउट हो जाएंगे, नॉट वैलिड बिकॉज इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए जो है वो रेजिडेंट है अहमदाबाद का, बी है रांची का, एंड दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शन पार्टली सेम, दोनों जगह ट्रांजैक्शन हो रही है, अहमदाबाद में भी रांची में भी। अब पार्टीज ने क्या किया है, दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज 6 कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगी और वो विद इन 6 मंथ्स होती है तो वो अहमदाबाद और रांची के किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर क्लॉज 7 में बोला गया है अगर 6 मंथ्स के बाद होता है तो चेन्नई के कोर्ट्स का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा टू डिसाइड द डिस्प्यूट। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब चेन्नई तो यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, चेन्नई का तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है यहाँ पे। हमने ऊपर पैसेज में काफी बार पढ़ लिया है कि हम स्टिपुलेट कर सकते हैं कि किसका जूरिस्डिक्शन होगा, अहमदाबाद और रांची का हमने जूरिस्डिक्शन स्टिपुलेट कर दिया है। एंड ये बोला है कि अगर विद इन 6 मंथ्स होगा तो हम इन कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। 28 को अगर हम देखें, यहाँ पर दो क्लॉजेज अगर देखें, इसमें दिया गया है कि कोई भी अग्रीमेंट जहां पर पार्टीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं दूसरी पार्टी को एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग द राइट, या फिर टाइम लिमिट कर रही हैं जिसमें वो अपना ये राइट इन्फोर्स कर सकती हैं, जैसे यहाँ पर टाइम लिमिट हो गई 6 मंथ्स की, तो ये वॉइड माना जाएगा टू दैट एक्सटेंट। या फिर पार्टी का राइट ही एक्सटिंग्विश कर रही हैं in respect of the contract on expiry of certain period। so right extinguish कर रही हैं, क्या वो 6 मंथ्स पे right extinguish कर रही हैं? यहाँ पर right extinguish तो नहीं हो रहा है, 6 मंथ्स में बोला गया है विद इन 6 मंथ्स अगर होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात अगर करें तो आप इसमें कर सकते हो, तो 6 क्लॉज जो है वो वैलिड है। 7th में बोल रहा है कि अगर 6 मंथ्स के बाद हो रहा है तो आप चेन्नई में करोगे, तो यहाँ पर ऑल्दो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग बट एट द सेम टाइम चेन्नई का जूरिस्डिक्शन भी नहीं है, तो
पैसेज की अगर सारी कंडीशंस को देखा जाए तो उस हिसाब से 7 जो है वो क्लॉज सही नहीं है। 6 वैलिड है बट 7 वॉइड है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाउएवर आई थिंक कि ये भी माना जा सकता है कि दोनों ही क्लॉजेस वॉइड भी माने जा सकते हैं, ऑन द ग्राउंड कि यहाँ पर आप टाइम से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि टाइम के बेसिस पे ही आप फाइल कर सकते हो। हाउएवर प्रॉपर प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन दोनों ही है। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर थोड़ा डाइसी है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पार्टीज कैनॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कैनॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट मेक अ चॉइस ऑफ द जुरिस्डिक्शन। हमने देखा कि पार्टीज चूज कर सकती हैं जुरिस्डिक्शन, दे कैनॉट एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। ये करेक्ट है। वो पार्टीज ऐसा नहीं है कि सारे ही कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हटा दें, बिकॉज दिस विल अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का पैसेज जो डील करता है हमारे टॉर्ट लॉ से। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इज बेसिकली अगर आपने हार्म के लिए कंसेंट किया है कि कोई सिचुएशन में आपको हार्म होगा एंड यू हैव कंसेंटेड टू दैट इंजरी और हार्म, तो आप लेटर अगर कोई हार्म होता है यू कैन नॉट से दैट आई विल गेट कॉम्पनसेशन बिकॉज आई हैव बीन हार्म्ड। तो ये एक टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात कर रहा है। साथ साथ ये भी बोला गया है कि सर्टेन जो एप्लीकेशंस हैं इस मैगजिम को लेके, जो रूल्स हैं लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। फिर एक्सेप्शंस में बात हो रही है कि एम्प्लॉयर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि रॉन्गफुल मिसकंडक्ट है एंड रेस्क्यूअर की बात हो रही है। देन अनदर वन स्पीक्स ऑफ नेग्लिजेंस के केस में किस तरह से ये मैक्सिमम अप्लाई होगा। देन इट फर्दर सेज कि साइकोलॉजिकल कंडीशन के केसेस में भी क्या होगा। अब अगर क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो कार का ओनर है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ए और डी है, डी ड्राइवर है, ए कार का ओनर है। ए रेस्टोरेंट पे उतर जाता है, डी पेट्रोल भराने गया है, वहां से उसने बी और सी को लिफ्ट दे दी। कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बी एंड सी को चोट लग जाती है एंड दे क्लेम दैट हमें इंजरी हुई है एंड दे सी क्लेम फॉर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ए एंड डी। तो अब इस केस में डी जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइबल होगा या वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया जो है वो एप्लीकेबल होगा एंड नो कॉम्पनसेशन विल बी क्लेम्ड। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया यहाँ पर अप्लाई होगा बिकॉज पार्टीज ने खुद कॉन्सेंट करा है दैट दे वांट टू सिट इन द कार। एंड नेग्लिजेंस, यहाँ पर नेग्लिजेंस की कोई बात नहीं करी गई है कि डी ने नेग्लिजेंटली ड्राइव किया या कुछ ऐसा कुछ। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें, पहली बात तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में अगर आपने अपने फ्री विल से आपने इनवाइट किया है, यू हैव एसेंटेड टू एन एक्ट एंड अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है उससे, देन यू कैन नॉट कंप्लेन कि कोई रॉन्ग हुआ है बिकॉज यू योरसेल्फ हैव एसेंटेड थ्रू योर फ्री विल। यहाँ पर पार्टीज ने एसेंट किया है लिफ्ट लेके, उन्हें पता था कि उन्होंने रिस्क लिया है, उन्होंने कॉन्शियसली डेलिबरेटली रिस्क लिया है एंड अगर इन डेंजर हो गया है उनकी सिचुएशन, तो उस केस में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रमा जो है वो एक स्पेक्टेटर है ऑटो रेसिंग केस में, मोटर रेसिंग केस में। इसका एक ऑलरेडी केस लॉ भी है, ये बेसिकली क्वेश्चन उस केस लॉ पे ही बेस्ड है। ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब का ये केस है जहाँ पर बेसिकली आप कार रेस देखने गए, अब वहां पे कार का कोलिजन हो रहा है और आपको चोट लग रही है, यू वेंट देयर एज ए स्पेक्टेटर और आपको चोट लग जाती है। तो इस केस में क्या होगा? आपने खुद ही अपने ऊपर इंजरी ली है, रमा टुक द रिस्क ऑफ द इंजरी एंड डेंजर बीइंग इनहेरेंट इन द स्पोर्ट, शी कुड फोर्सी एंड डिफेंडेंट विल नॉट बी लायबल। देन नेग्लिजेंस नहीं है यहाँ पे, रिस्क इंजरी का उसने लिया ही है, तो ये भी इनकरेक्ट है। रमा नेग्लिजेंट नहीं थी इसलिए इसका मतलब ये नहीं है उसे इंजरी हुई है। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट ऑलवेज अमाउंट टू कंसेंट। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है कि आपने रिस्क जानते हुए रिस्क को लिया है, यू हैव कंसेंटेड टू द रिस्क आउट ऑफ फ्री विल।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। आपको रिस्क के बारे में पता था, आपको नॉलेज थी, बट क्या फिर आपने वो रिस्क लिया? mere knowledge will not amount to consent, therefore option A is the correct answer here। बिकॉज हमने यहाँ पर देखा है कि कॉन्शियसली अगर आपने रिस्क फेस किया है तो ही आप लाइबल होंगे। देन फर्दर लिली, लिली का ग्राउंड है, उसने स्प्रिंग गन्स लगाई हुई हैं। करण को फुल नॉलेज थी कि स्प्रिंग गन्स लगी हुई है यहाँ पे, तो उसको नॉलेज था कि अगर वो ट्रेस पास करेगा तो उसको इंजरी होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लिली विल बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन टू करण। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज लिली कॉम्पनसेशन नहीं देगी। लिली ने ऑलरेडी स्प्रिंग गन्स लगाई हुई हैं, वॉलेंटी करण को पता था इस बारे में, एंड करण का केस जो है वो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में नहीं जाएगा। देन करण हैड द नॉलेज ऑफ द स्प्रिंग गन्स एंड विलफुली कोटेड द डेंजर हिमसेल्फ। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज करण को नॉलेज थी स्प्रिंग गन्स की एंड ही विलफुली कोटेड दैट डेंजर। उसको पता था, उसको फुल नॉलेज थी स्प्रिंग गन्स हैं, एंड उसने खुद ही विलफुली ही कोटेड द डेंजर। अब ऑप्शन सी और डी दोनों ही एक्चुअली करेक्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में भी उसका केस नहीं डलेगा, उसको पता था इस बारे में। तो देखते हैं कि कंसोर्शियम का आंसर क्या रहता है। Then question 100, which of the following is not an essential element to claim voluntary non-fit injuria? Not essential to claim voluntary non-fit injuria, prior knowledge of the plaintiff about the risk involved। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फ्री कंसेंट जरूरी है, प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू अग्री, कंपल्शन की यहाँ पे बात ही नहीं है, नॉलेज की हमने बात करी है, उसको पता था रिस्क है, उसने फिर रिस्क को कंसेंट किया, देन उसने वॉलेंटरीली रिस्क को एक्सेप्ट किया। बट कंपल्शन की बात पैसेज में कहीं नहीं करी गई है कि वो कंपेल किया गया है टू फेस दैट रिस्क, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Then coming on to the final passage, this is relating to the concept of marriage। मैरिज के बारे में बात करी गई है कि सेक्शन 5 में मैरिज क्या होता है, सेक्रेमेंट है। देन फर्दर और ये बोला गया है सेरेमनीज होनी चाहिए मैरिज की, एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड वैलिडली। कोई भी मैरिज जो है वो तभी वैलिड मानी जाती है अगर वो प्रॉपरली सोलमनाइज हुई है। वैलिड मैरिज सोलमनाइज कब होती है? जब कॉम्पिटेंट हैं पार्टीज टू एंटर इनटू द मैरिज, एंड फर्दर सेक्शन 13 जो डिवोर्स की बात करता है उसके एक ग्राउंड की बात करी गई है। पूरे में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शन 13 क्लॉज 2 की ही बात करी गई है कि वाइफ जो है वो डिवोर्स कौन से ग्राउंड पे सीक कर सकती है। तो यहाँ पर बाईगैमी की बात करी गई है कि अगर हस्बैंड 494 के रिलेशन में, कि अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है पहली वाइफ के होते हुए तो वो वाइफ ग्राउंड जो डिवोर्स है वो सीक कर सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ए जो है वो एक 40 ईयर ओल्ड मेल है, उसकी वाइफ है। अब दोनों हिंदू हैं, एंड ए जो है वो सी जो एक क्रिश्चियन है, वो अपनी फैमिली को जाके बोल देता है कि आज से ये मेरी वाइफ है, एंड ही जस्ट डिक्लेयर्स इट। तो अब इस केस में क्या लाइबिलिटी होगी ए की? क्या वो बाईगैमी होगा? अगर हम यहाँ पर पैसेज को देखें, पैसेज में हमने देखा कि वैलिड मैरिज कब मानी जाएगी? जब सारी सेरेमनीज जो हैं मैरिज की वो फॉलो हुई है। यहाँ पर बोला गया है इफ एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मैरिज राइट्स एंड सेरेमनीज अगर नहीं हुई हैं और अर्लियर मैरिज सेट असाइड नहीं हुई है तो वो मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर राइट सेरेमनीज तो हुई नहीं है, उसने बेसिकली बस एक डिक्लेरेशन किया है, तो ही विल नॉट बी लाइबल फॉर बाईगैमी एज ही हैज नॉट सोलमनाइज द मैरिज विद सी, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब सोलमनाइज का मतलब क्या होता है? हमने पैसेज में ऑलरेडी देखा कि राइट्स और सेरेमनीज हो रही हैं, प्रॉपर कस्टम एंड राइट्स फॉलो हो रहे हैं, उसको हम सोलमनाइजेशन बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द लॉ ऑफ मोनोगैमी? मोनोगैमी मतलब एक इंसान से ही शादी करना। मोनोगैमी इज यूनियन ऑफ मैन एंड वाइफ which provides their relation social recognition। Then monogamy as a law was abolished after 1955। तो अगर हम पैसेज में देखें, यहाँ पर पैसेज में बोला गया है मोनोगैमी जो है वो 1955 में इंट्रोड्यूस हुआ था।
सो आउटराइटली ये जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि पैसेज के बेसिस पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रेमेडी से रिलेट नहीं करती है। सेक्शन 13 बात कर रहा है द रेमेडी ऑफ डिवोर्स। तो अब डिवोर्स की रेमेडी से इनमें से कौन सी चीज रिलेट नहीं कर रही है। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वाइफ फॉर रेमेडी फॉर डिवोर्स, दिस इज करेक्ट। Introduction of ground of divorce is unnecessary as it disturbs the sanctity of the marital institution। इस स्टेटमेंट को अभी होल्ड पे डालते हैं। अ रेमेडी इज ओनली अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन इफ द हस्बैंड हैज अदर वाइफ लिविंग। अब यहाँ पर यू माइट गेट कंफ्यूज कि सेक्शन 13 यहाँ पर पूरी जगह, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कि सिर्फ यही दिया गया है जो बाइगैमी के रिलेशन में बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि इफ वाइफ इज अलाइव। अब ये सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 की बात कर रहा है। पूरे सेक्शन 13 में फर्दर और भी ग्राउंड्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखें कि रेमेडी तभी अवेलेबल है अगर हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है वो लिविंग है, ये अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ये तभी अवेलेबल है जब वो बाइगैमी के केसेस में है, तभी हम अदर वाइफ की बात करेंगे। अदरवाइज तो हम नॉर्मल वाइफ की बात कर रहे हैं डिवोर्स में। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन, अब ये जो वाला जो स्टेटमेंट था, ऑल्दो लग सकता है कि ये करेक्ट हो, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अननेसेसरी नहीं है क्योंकि वो सैंक्टिटी डिस्टर्ब करता है। बट अगर हम देखें तो यहाँ पर पैसेज में बोला गया है, बट पैसेज में बाइगैमी की बात करी हुई है, कोई दूसरी शादी कर लेगा तो दूसरे इंसान को रिलीफ चाहिए इस ऐसी सिचुएशन से, तो फिर ये जो ग्राउंड फॉर डिवोर्स है ये अननेसेसरी तो नहीं हुआ। देन फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 105। पी जो है वो एक 20 ईयर ओल्ड मेल है, हिंदू है, वो क्यू से शादी करता है जो हिंदू है। अब पी क्या है, वो इस्लाम में कन्वर्ट करके एन से शादी कर लेता है जो भी एक इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाली लड़की है। अब इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है और बताना है कि क्यू के पास रेमेडी है कंप्लेंट फाइल करने की फॉर ऑफेंस ऑफ बाइगैमी अगेंस्ट पी, कि क्या उसके पास रेमेडी है बाइगैमी के लिए फाइल करने की। अब यहाँ पर हमने देखा कि वो कन्वर्जन कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम और फिर शादी कर रहा है, तो मतलब वो हिंदू तो रहा ही नहीं। तो उस पे जो है रेमेडी ऑफेंस ऑफ बाइगैमी जो है वो अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज मुस्लिम लॉ में बाइगैमी अलाउड है, ऑल्दो पैसेज में ये सब नहीं दिया है, ना कन्वर्जन के बारे में दिया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यस, क्यू कैन फाइल अ कंप्लेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ये इनकरेक्ट है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं करी है। क्यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट एज इट डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ मैरिज। अब ये तो रीजन नहीं हो सकता कि क्यों इसलिए कंप्लेंट फाइल नहीं करेगी क्योंकि मैरिज का पर्पस ही डिफीट हो गया है। क्यू cannot file the complaint as P has converted to other religion and offense of bigamy will not be attracted when the parties are not Hindus। So option C जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज क्यों कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल कर सकती, बिकॉज अनदर रिलीजन हो गया एंड पार्टी जब हिंदू नहीं रही तो ये अप्लाई ही नहीं हो सकती सिचुएशन। यहाँ पर हम बाइगैमी की जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम सारी बात हिंदू मैरिज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो अगर जो डिवोर्स का भी ग्राउंड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हम हिंदू मैरिज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो क्यों यहाँ पर कंप्लेन नहीं फाइल कर सकती। और बाइगैमी के रिलेशन में बाकी और कुछ नहीं दिया है, ऑल्दो वी नो कि बाइगैमी जो है वो एक ऑफेंस है, वो पनिशेबल है, बट यहाँ पर हमें कन्वर्जन के बारे में कुछ नहीं दिया है। सो हियर शी कैनॉट फाइल द कंप्लेन। सो विद दिस हमारे ये जो लीगल रीजनिंग सेक्शन के सॉल्यूशंस हैं वो खत्म होते हैं। ऑन द होल एज वी सॉ कि लीगल रीजनिंग ऑल्दो बहुत कंसेप्चुअल था, बट एट द सेम टाइम पैसेज से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, हमने देखा पैसेज से सॉल्व हो सकते हैं। 2022 के लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ें और आप
लीगल रीजनिंग को रीजनिंग के तरीके से, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। सो दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। कॉन्सेप्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी रखनी है, साथ साथ लीगल करंट अफेयर्स भी करना है। जो 21 के स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर हो चुका है, आई होप कि ये जो अभी हमने डिस्कस करा आपके भी आंसर्स इससे मैच करते हो। एंड जस्ट इन केस अगर आपके आंसर्स नहीं भी मैच कर रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपके मार्क्स कम आएंगे, डोंट वरी, एलिट का एग्जाम अभी भी बाकी है और बहुत से एग्जामिनेशंस बाकी हैं, उन पे फोकस कीजिए। फॉरगेट हाउ दिस पेपर वाज, फोकस ऑन द अदर पेपर्स एंड ट्राई टू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स जो आपने इस एग्जाम में करी। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि कट ऑफ, क्योंकि पेपर 2020 से थोड़ा सा इजियर था, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। Further, everything depends on your attempts, your accuracy. So it is all subject to that. We will wait for the final answer key of the CLAT to come out. And till then, keep studying, keep working hard, and थोड़ा rest भी कीजिए and take things easy. Let us wait for the final answer key and good luck with your admissions.